اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاضران محفل سبوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام آپ ورحمۃ سبوں اللہ کو وبرکاتہ. امام حسن علیہ السلام کا نزول مبارک ہو. بے شک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، یا علی ولی اللہ، نعرہ حیدری. یا علی یا عزیزان گرامی، آج کا رات شب قدر سے نسبت ہے، اس لیے قرآن ناطق کا نزول ہے. ماہ رمضان کا 10 تاریخ جو تھا وہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا یوم وفات تھا، اور آج کا دن جو گزرا حضرت مختار علیہ السلام کا شہادت تھا، اور آج کا شب عید والی شب ہے، اور اس ماہ مبارک میں شب قدر بھی ہے اور مولا علی علیہ السلام کا شہادت بھی ہے. عزیزان گرامی، لہٰذا آج ہم لوگ عید کا جشن منانے بیٹھے ہیں، تو ایک درود کا تحفہ بآواز بلند پیش درود کا تحفہ اس لیے بآواز بلند پڑھنے کو کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کہ ہم سلامتی پیش کرتے ہیں، سلامتی کا دعا پیش کرتے ہیں ہم اپنا آقا پر محمد وآل محمد پر، لیکن وہ رحمت کا سمندر ہے، ان کو کیا درکار ہے ہمارا سلام و دعا کا، درود کا. لیکن وجہ یہ ہے کہ سمندر پر جب آپ ایک جگ پانی ڈھالیں گے تو پھر وہ پانی چھٹک کر آپ کے پاس ہی آئے گا. لہٰذا جتنا بلند آپ پیش کریں گے درود کا تحفہ، اتنا ہی رحمت آپ پر چھٹک کر آئے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درود کا تحفہ بآواز بلند پڑھنا چاہیے. صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج سورہ کوثر کا پہلا تفسیر کا رات ہے کہ سورہ کوثر کا پہلا تفسیر آج مکمل ہوا. سورہ کوثر میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے تم کو کوثر عطا کر دیا، انا اعطینا کل کوثر، میں نے تم کو کوثر عطا کیا. مولوی نے سمجھا کہ جام والا پانی ہے جو رسول اللہ پلائیں گے، وہی عطا کیا. لیکن شان نزول سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ آیت کس وجہ سے آیا. یہ آیت کا شان نزول، یہ سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کا 2 اولاد پردہ کر چکے تھے، اس لیے نبی کو لوگ تانا دے رہے تھے، کافر تانا دے رہے تھے اس کا اولاد نہیں، یہ ابتر ہے. اللہ نے کہا میں تمہیں کوثر دیتا ہوں، سبحان اللہ. اور کوثر دینے کے بعد رزلٹ کیا نکلا؟ ان شانیہ کا ہوا الابتر. آج وہ ابتر ہو گیا جو تجھے ابتر کہتا تھا. کیا بات ہے. اب مولویوں سے میرا سوال ہے کہ اللہ اولاد لے کر جام دے کر کہتا ہے کہ کوثر عطا کیا، اولاد کا بدلہ اولاد ہوگا، اور اولاد سے ہی اللہ نے جواب دیا. تو کوثر ہے فاطمہ، فاطمہ کا تفسیر ہے حسن حسین، اور آج حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. عربی میں حسن کہتے ہیں بڑے حسین کو. اگر حسین کو بڑا کر دیا جائے تو پھر وہ حسن بنتا ہے، اور حسین چھوٹے حسن کو کہتے ہیں. اگر حسن کو چھوٹا کیا جائے تو پھر وہ حسین بنتے ہیں. سبحان اللہ. بڑا حسین کو حسن کہا جاتا ہے، چھوٹا حسن کو حسین کہا جاتا ہے. یہ حسن، اب لوگ حسن حسین میں تکبرہ کرنے لگے کہ حسن علیہ السلام کا مزاج ٹھنڈا تھا، حسین علیہ السلام لڑاکو تھے. اچھا کیسے؟ تو بتاتے ہیں حسن علیہ السلام نے ہمارے پیر سے صلح کیا تھا. ان کا پیر ہے بھائی، اب ہم کیا کریں؟ ان کو پیر بھی ملا جنت کا سردار کا دشمن. پیر سے جنت کے سردار نے صلح کیا تھا، وہ ٹھنڈا مزاج کا تھے. لیکن اور
पीरजादा जो निकले उनसे इमाम हुसैन ने जंग कर लिया। आज वहाबी टोला जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर इल्जाम देता है कि नहीं जाना चाहिए था करबला में। बड़ा बड़ा किताब लिखकर छपा दिया है इमाम हुसैन के खिलाफ कि इमाम हुसैन बड़ा कड़ा मिजाज के थे। अब लोगों जो जाहिल मुतलक लोग समझे नहीं, बेशक इमाम हसन ने मिजाज से काम लिया और इमाम हुसैन ने जज्बात से काम लिया, नहीं। सवाल दो मकाम में दो सवाल था, इसलिए इमामों ने दो जवाब दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के टाइम में वक्त में क्या सवाल था? इमाम हसन अलैहिस्सलाम से हुकूमत मांगा गया था। इमाम हसन से हुकूमत मांगा गया था और हुकूमत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ठोकर में पलता है। बेशक बेशक ठोकर में है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हुकूमत मांगा था यजीद का अब्बा ने और हुसैन से बैयत मांगा था। एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया और जाकर अपना प्रॉब्लम बताया तो डॉक्टर ने कहा प्रॉब्लम बड़ा है लेकिन दवा खाने से ठीक हो जाएगा। आप 10 साल ये दवा चलाइए, उम्मीद है ठीक हो जाएगा। 10 साल बाद मरीज और बढ़ गया, वो और एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन के अलावा कोई चारा ही नहीं। अब बेचारा टेंशन में पड़ गया कि ये डॉक्टर ठीक है या वो डॉक्टर ठीक था। उसने तो दवा से काम चला दिया, ये ऑपरेशन कौन ठीक है? डॉक्टर दोनों ठीक है लेकिन वो इंसान जहालत से काम कर रहा था। मर्ज इतना गहरा नहीं था। पहले डॉक्टर ने देखा कि दवा से काम चल जाएगा इसलिए दवा दिया था, लेकिन बाद वाले डॉक्टर ने देखा कि जख्म गहरा हो चुका, ऑपरेशन के अलावा कोई चारा ही नहीं। हसन के टाइम में इमाम हसन ने देखा सुलह से बेनकाब कर दिया जाएगा, यजीद का अब्बा को बेनकाब कर दिया जाएगा, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह वाला ऑपरेशन को अपनाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि करबला के अलावा कोई चांस ही नहीं, कोई मौका नहीं, अब करबला करना पड़ेगा। इमाम हसन से सवाल था हुकूमत का और इमाम हुसैन से बैयत का। लोग इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के अब्बा पर एक इल्जाम उठाते हैं कि सकीफा का पहला लीडर के पास अली ने बैयत किया था। अगर बैयत अली कर लेता तो हुसैन भी बैयत कर लेता। बेशक बेशक जैसा पहला लीडर था उसी का पैरोकार था यजीद। यजीद कौन? फिरौन शाम का बेटा। ये फिरौन शाम को किसने हुकूमत दिया? फिरौन शाम को हुकूमत दिया सकीफा का दूसरा लीडर ने। और पहला लीडर जो था फिरौन शाम का बड़ा भाई, उसका नाम भी यजीद था। उसने यजीद को हुकूमत दिया था। दूसरा लीडर के वक्त में आपका यजीद का इंतकाल हुआ, वासिले जहन्नम हुआ, तो फिर दूसरा लीडर ने यजीद का अब्बा को हुकूमत दिया। उसे अच्छा तरीके से पता था कि अहले बैत के ये कट्टर दुश्मन, ये अहले बैत के मामले में कोई छाड़ वाड़ देने वाले नहीं, इसलिए बैठाया गया था। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो अमीर शाम, फकीर शाम और यजीद जो पैरोकार है, ये सकीफा का पैरोकार है। तो अगर अली, तुम कहते हो अली बैयत किया था पहले लीडर का, तो इमाम हुसैन भी यजीद का बैयत कर लेते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत ना कर बता दिया जब मैं अली ज़्यादा होकर बैयत नहीं करता तो फिर अली कैसे बैयत करते? इमाम हुसैन ने बताया। इमाम हसन ने बताया कि ठोकर में हुकूमत है, हमने मेरा बाबा ने हुकूमत ठोकर में दे दिया था, खैरात में दे दिया था। इमाम अली ने हुकूमत खैरात में दिया है, बैयत नहीं किया था, क्योंकि आले मोहम्मद को हुकूमत से कोई लगाव नहीं, क्योंकि हुकूमत के लिए आखिरी इमाम को अल्लाह ने मुकर्रर किया है। वो आएंगे तब पता चलेगा कि अल्लाह का हुकूमत किसे कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी,
امام حسن علیہ السلام پر جو تہمتیں ہیں، ہمارا کسی امام پر ایسا تہمت نہیں لگا. یہ وہ مظلوم امام ہے. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا وکیل گھر گھر میں مل جائے گا، لیکن یہ وہ مظلوم امام ہے جس کا وکیل خوب بہت مختصر وکیل ہے. ان کا امام حسن علیہ السلام پر تہمت لگایا گیا کہ یہ ان کا شادی کرنے کا بہت شادی کرتے تھے اور طلاق بھی دے دیتے تھے. میرا سوال ہے اس بے غیرت مولوی سے جو امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام پر الزام دیتے کہ شادی کرنا اور طلاق دینا امام حسن علیہ السلام کا یہ عادت تھا. تو میرا سوال ہے جس نے زائدہ جیسا جوزہ کو طلاق نہیں دیا وہ اگر شادی کرتے اور طلاق کیسے دیتے؟ جس نے زائدہ کو ہی طلاق نہیں دیا. اگر ایسا عادت امام حسن کا ہوگا تو زائدہ کو طلاق دیتے. عزیزان گرامی، تو یہ الزام امام حسن علیہ السلام پر ہے. امام حسن علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے دور پر جو جعل حدیث چھپا ہے، حضرت عائشہ خود راوی ہے. 2300 جعل حدیث آپ کا معاویہ کے نام پر رچایا گیا. اسی وقت میں اسی دور میں فقیر شام کو کاتب وحی قرار دیا گیا وہی وقت میں، اور یہ بھی نہیں سمجھا جسے کاتب وحی کہا جا رہا. یہ سرکاری کلمہ پڑھا فاتح مکہ کا بعد. فاتح مکہ کا بعد آیت ہی کتنا اترا تھا جو یہ نوٹ کرتے تھے. فتح مکہ کا بعد آیت کتنا اترا جو نوٹ کرتے تھے. عزیزان گرامی، اور ایک مسئلہ آتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا 12 امام چلا ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت اہم سوال ہم سے کیا جاتا ہے، اس دور میں کیا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے آپ کا نسل چلا لیکن حسن سے نسل اور دیگر امام کا نہیں چلا. بیوقوف ہے. ہمارا 12 امام کا نسل حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے. بے شک بے شک. اب کیسے؟ پہلا امام علی بن ابی طالب جن کا زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا امامت چلا. حسن و حسین علیہ السلام آ کر رکا. چوتھا امام زین العابدین جو امام حسین علیہ السلام کا بیٹے ہیں. پانچواں امام آئے. کیا اب تو حسین سے نسل چلا، حسن سے نہیں چلا؟ میرا سوال ہے کہ پانچواں امام کا اماں کا نام کیا ہے؟ پانچواں امام کا امی کا نام ہے فاطمہ بنت حسن علیہ السلام. امام باقر علیہ السلام کا نانا حسن علیہ السلام ہے، دادا حسین علیہ السلام ہے. اب نسل پھر چلا علی اور فاطمہ سے. بے شک. چوتھا امام علی بن الحسین اور ان کا زوجہ محترمہ فاطمہ بنت الحسن. اب پھر علی اور فاطمہ سے نسل چلا امامت کا. تو ہمارا دیگر امام بھی حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے. آج کے بعد سے اگر کوئی کہے کہ آپ کا امام کا جو نسل چلا امام حسین سے چلا، امام حسن سے نہیں چلا. عزیزان گرامی، جو حکومت کا بارے میں بات ہو رہا تھا، میں آخری مرحلہ پر ہوں. 2 ہی مقام ہے دین کا، اسلام کا 2 ہی مقام ہے. اللہ نے قرآن میں اسلام کو دین قرار دیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ایک دین ہے. لیکن دنیا کو اسلام کا پہچان دیا گیا. اسلام ایک حکومت ہے. یہ ہے یزیدی شریعت، یہ ہے ثقیفہ کا شریعت. اور جو اسلام کو حکومت سمجھا وہ طرح طرح کا فرقہ میں بٹا. جس نے اسلام کو دین سمجھا اس کا امام بھی 12 ہے، مذہب بھی ایک ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آیا. لیکن تبدیلی کہاں آ گئی؟
जहाँ इस्लाम को हुकूमत समझा गया, हाँ अल्लाह ने दीन के रहनुमा के लिए कहा इन्नी जाइलु फिल अर्द खलीफा, हाँ इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, रहनुमा मैं बनाऊंगा, खलीफा मैं बनाऊंगा, हाँ। इमाम मैं बनाऊंगा। क्यों? इसलिए कि नबी मैं बनाता हूँ, वजअलनी नबिय्या, हाँ। नबी मैं बनाता हूँ तो मैं खलीफा भी भी मैं- बनाऊंगा, बेशक। इमाम भी बनाऊंगा। हाँ। अब कादियानी काफिर कैसे हो गया? कादियानी काफिर इसलिए है कि नबी बनाते हैं अल्लाह, कादियानियों ने अपना नबी अपने ही बनाया। हाँ अब लोग कहते हैं ये कादियानी काफिर, हमें गुलाम अहमद तो, मिर्जा अहमद तो वो तो नबी नहीं था, उसने खुद नबूवत का दावा किया। अल्लाह नबी बनाता हुआ जअलनी नबिया, अल्लाह नबी बनाते ये खुद से बन गया। तो पता चला जो नबी इंसान मुकर्रर करे वो काफिर है, वो मुशरिक है। बेशक। अब अल्लाह कह रहा है इन्नी जाइलुका फिल अर्दी, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इमाम मैं बनाऊंगा, इन्नी जाइलु फिल अर्दी खलीफा, जमीन में खलीफा मैं बनाऊंगा। तो जो नबी बना दे वो तो काफिर है, जो खुद से इमाम बना दे उसे क्या कहोगे? एक दरूद का तोहफा पेश करें। दीन का इमाम मुकर्रर अल्लाह ने किया है, इसलिए तो गदीर में ऐलान हुआ मन कुंतु मौला फहाज़ा ली मौला। अल्लाह ने कहा कि नबी कह दीजिए, और नबी ने सारे जहां को बता दिया कि मेरे बाद ही बाद रहबर अली है, बेशक। इमाम अली है, खलीफा अली है, हाँ। मेरा वसी अली है। हाँ। ये नबी ने बताया है। अब अकल के अंधों को समझ में नहीं आया तो हम क्या करें? वो कहते अली का बाबा जो थे उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। मैं कहा कैसे कलमा नहीं पढ़ा? कहा रसूल कह रहे थे अबू तालिब हमार चाचा कलमा पढ़े नैन, कलमा पढ़े नैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ছিলেন আবু তালিব শেষ মুহূর্তে পড়েননি, শেষ মুহূর্তে পড়েননি, কানে কানে বলে দিলেন আমি कौलेमा पढ़ते पारबो ना। अब मेरा सवाल है, तुम तो कान के बात सुनते हो, सुनने का आदि हो, कान का फुसुर फुसुर सुनने का आदि हो, नबी का ऐलान कैसे भूल गए? वाह वाह जो कान का बात सुनता है वो ऐलान भूल गया। हाँ और हदीसों में भी वल्लाह क्या लिखा? हदीसों में लिखा रसूलुल्लाह ने कहा था मेरा बाद 12 इमाम आएंगे, और राबी कहता इसके बाद क्या कहा था? राबी कहता मैं भूल गया, मुझे समझ में नहीं। हाँ। जो कान का बात समझते थे हाँ वो ऐलान भूल गए, हाँ जो फुसुर फुसुर सुनते थे वही राबी कह रहे हैं कि नबी ने कुछ कहा था मेरा बाद 12 इमाम आएंगे, उसके बाद क्या क्या कह रहे थे समझ में नहीं आया। तो इनको समझ में कुछ नहीं आता जब हक का बात आता है। हाँ। जब अपना मसला आ जाए तो फिर मौला अली से सवाल किया गया था, या अली इब्न अबी तालिब सुना है आपका अब्बा जहन्नम में गए, नाउजुबिल्लाह। नाउजुबिल्लाह। लोग कहते हैं आपका अब्बा काफिर मरे। इमाम अली ने फरमाया मेरा अब्बा का छोड़ो, अपना अब्बा का सोचो। हाँ मौला का जवाब था मेरा अब्बा छोड़ो, अपना अब्बा सोचो। साहबी ने कहा या अली इब्न अबी तालिब ये कैसा जवाब है? मौला ने कहा जलाल में आकर कहा क्या तुमने मस्जिद नबी में नहीं सुना कि रसूलुल्लाह ने अपने पाक जुबान से बताया था अली कसीमुन नारे वल जन्ना, हाँ। अली जन्नत और जहन्नम बांटने वाला है। हाँ कहा जी मैंने सुना है। कहा तूने किसी से सुना है या अपना कान से सुना? उसने कहा मैंने अपने कान से सुना। मौला अली ने कहा चल ये जो मेरा ये हैसियत है ये मैं तुझे दे देता हूँ, अता कर देता हूँ। चल तू अपना अब्बा को कहाँ भेजेगा? ये बता। अपना अब्बा को जहन्नम में भेजेगा? कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं अपना अब्बा को जहन्नम में भेज दूँ। अली इब्न अबी तालिब ने कहा मैं कसीमुन नारे वल जन्ना हूँ, मैं जन्नत और जहन्नम बांटने वाला हूँ। मेरा अब्बा का छोड़, मेरा अब्बा को मैं फेंकूंगा, तुझे भी मैं फेंकूंगा। एक सलवात का तोहफा पेश करूंगा। अपना सोच कहाँ जाएगा? मौलवी घबरा गए, कहने लगे ये कैसे हो गया? अली जन्नत बांटेंगे, जहन्नम बांटेंगे, ये कैसे मुमकिन है? अरे ये हो सकता है? अज़ान ग्रामी मौलवी से कह दिएगा ये फरमान नबी का है। अगर एतराज करना है तो नबी से करो, हमसे क्यों करते हो? कहना रसूलुल्लाह
মাওলা আলী মাওলা আপনারা মানেন, রাসূলুল্লাহ বন্টন করবেন না, আল্লাহ জান্নাত বানাইছে জাহান্নাম বানাইছে, আল্লাহ বন্টন করবেন না, আর আপনারা আলীকে ফিটিং করে দিলেন। না हम किसी को फिटिंग करते हैं, ना हम किसी को सेटिंग करते हैं। फिटिंग करना भी तुम्हारा काम है, सेटिंग करना भी तुम्हारा काम है। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन तुम्हारा इतराज है ना कि जन्नत और जहन्नम अली क्यों बांटेंगे? हाँ सुनो जवाब। अगर अल्लाह जन्नत बांटते तमाम इंसान, कोई भी धर्म का हो, वो जाकर कहता भगवान जन्नत, हाँ गॉड जन्नत, हाँ ईश्वर जन्नत, हाँ रहमान भी है रहीम भी है, जन्नत देना पड़ेगा। अगर रसूल बांटते तो 72 का 72 आ जाते, या नबी जन्नत, या हबीब अल्लाह जन्नत, हाँ या नबी अल्लाह जन्नत। हाँ। लेकिन बांटने का जिम्मेदारी इसलिए अली को दिया गया है कि जन्नत में काफिर और मुशरिक तो दूर का बात है, मुनाफिक भी नहीं जा सकता। सलवात का तोहफा पेश करें। यही मार है अल्लाह का, तो हुकूमत और दीन। अल्लाह का रहबर अगर कैद में आ जाए तो उसका रहबरी में, उसका रहबर होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदी भी थे, नबी भी थे। बेशक हजरत यूसुफ कैदी भी थे, नबी भी थे। लेकिन जो मौजूदा हाकिम, उसको अगर कैद कर लिया जाए वो हाकिम नहीं रहता। हाँ जो हुकूमत का हाकिम होता उसे कैद कर लो, वो हाकिम नहीं रहता। लेकिन अल्लाह का दीन का जो हाकिम है, खलीफा है, इमाम है, नबी है, हाँ उसको कैद कर लिया जाए वो हुज्जत रहता है। अज़ीज़ान गिरामी, हुज्जत के गले में रस्सी आने से हुज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी बांधा गया था। हाँ कोई बताए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इज्जत में कोई कमी आ गई? नहीं इब्राहिम इब्राहिम रहे। बेशक। अलबत्ता गर्दन में रस्सी डालने वाला नमरूद लानती बन गया। बेशक बेशक अब तुम हमें कहते हो कि अली इब्ने अबी तालिब के गले में रस्सी बांधा गया, अली ने कुछ क्यों नहीं कहा? कि अली दिखा रहे थे मेरा दादा इब्राहिम का दौर याद करो, मैं दौर का नमरूद को दिखा रहा हूँ। नमरूद का तोहफा पेश करें। अज़ीज़ान गिरामी, एक है हुकूमत, एक है दीन। हुकूमत के नजदीक सबसे कीमती चीज है वोट। ये वोट के लिए भी लोग जमा होते हैं। हाँ और दीन के नजदीक सबसे कीमती चीज है जनाजा। हाँ जनाजे के लिए भी लोग जमा होते हैं। अगर नबी का वसी को देखना है, अगर नबी का नायब को देखना है, तो ये ना देखो कि नबी की जिंदगी में कौन कौन साथ रहे, ये देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजा में शरीक कौन था। हाँ कि दीन का नजदीक जनाजा अहम है, वोट अहम नहीं। ये ना देखो कि नबी के बाद वोट लेने कौन गया कि हम ही खलीफा हो, हम आके वोट दें। ये देखो कि नबी के जनाजे में शरीक कौन था। हाँ अब ये पता नहीं चलता कि इस दौर में हम कैसे समझे कि नबी का खलीफा कैसे होगा, क्योंकि हुकूमत वालों के नजदीक ये मिजाज बन चुका है, जिसके पास तख्ता हो वही खलीफा, हाँ जिसके पास हुकूमत हो वही खलीफा, हाँ। जिसका माथा में ताज हो वही खलीफा, जिसका साथ लश्कर हो वही खलीफा, जिसका पास पावर हो वही खलीफा। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, मैंने पहला खलीफा का ऐलान यूँ किया, इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा, मैंने पहला खलीफा का ऐलान किया कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। ज़मीन में खलीफा किसको बनाए? पहला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। अब जो हुकूमत वालों का मिजाज है, अब दिखाओ कि आदम अलैहिस्सलाम का हुकूमत कुर्सी कहाँ, हुकूमत का ताज कहाँ, लश्कर कहाँ?
पावर कहाँ दिखाओ, लेकिन ये दीन का खलीफा थे, हुकूमत नहीं फिर भी खलीफा, हाँ लश्कर नहीं फिर भी खलीफा, हाँ धन दौलत नहीं फिर भी खलीफा। तो अब हम कैसे समझे कि नबी का खलीफा कौन है? तो ये ना देखो कि नबी के बाद हुकूमत किसके पास था, हाँ ये ना देखो, क्योंकि अल्लाह ने कहा जब मैंने आदम को खलीफा बना दिया, रूह फूंक दिया मिट्टी के जिस्म पर, तब मैंने तमाम फरिश्तों को ये अम्र किया कि सब के सब सजदे में चले जाओ, हाँ सब के सब सजदे में चले जाओ। तो अल्लाह गोया ये बता दिया कि नबी के बाद ये ना देखना कि हुकूमत किसके पास था, लश्कर किसके पास था, धन दौलत किसके पास था, बल्कि ये देखो कि फरिश्ता किसके घर चक्कियाँ पीसने आते थे, वाह। किसका बच्चे का झूला झुलाने आते थे। हाँ। इधर उनका तौबा पेश करें। तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मुलाकात होगा अगले महफिल में। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पढ़िए। एक अल्फाज है, हाँ अज़ान तो हम लोग सुनते हैं अल्लाह अकबर, मौज़िन जो है ना कान में उंगली दे के रखता है।